Last 2 weeks spoke about how God will change our weakness into strengths. पिछले 2 हफ्ते से हम मनन कर रहे थे परमेश्वर कैसे हमारी कमजोरियों को हमारी सामर्थ्य में बदल देते हैं। We took the example of people like Moses and Peter and Paul, how they had weaknesses, but God changed them into strengths. और हमने उदाहरण देखा था मूसा का, पतरस का, पौलुस का, कैसे परमेश्वर ने उनकी कमजोरियों को उनकी सामर्थ्य में बदल दिया For God's glory and for edification of God's people. ताकि उससे परमेश्वर के लोगों की बढ़ोतरी हो और परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। One common factor between people like Paul and Moses and other people were that they were all humble people. और एक बात जो इन सब लोगों में, मूसा में, पौलुस में, पतरस में थी, वो एक गुण था वो सब में, वो ये था कि वो बड़े नम्र लोग थे। And God gives grace to the humble. और परमेश्वर जो नम्र लोग होते हैं उनको अपना अनुग्रह देता है। Proverbs 3:34 says, God resists the proud, he gives grace to the humble. और नीति वचन 3 अध्याय उसकी 34वीं आयत में परमेश्वर लिखा है कि परमेश्वर जो है घमंडी को तो लज्जित करता है पर नम्र को ऊंचा करता है। And as we humble ourselves also, we will receive more and more grace from God. और जैसे हम अपने आप को नम्र करते हैं वैसे परमेश्वर से हम भी अनुग्रह पाते जाते हैं। In 1 Peter chapter 5 verse 6, we read about how Peter writes, humble yourself before God and he will lift you up in due time. पहला पत्रस 5:6 में हम पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। And humbling is an act of the will on the part of a Christian. और ये जो नम्र होना है ये एक मसीह की खुद की इच्छा पे निर्भर करता है कि वो नम्र बने। And today and next week, maybe even beyond that, I'll be thinking on how the Word of God teaches us how we can humble ourselves and thereby please God and receive more grace from God. और आज और आने वाले हफ्तों में देखेंगे कैसे हम परमेश्वर को अपनी नम्रता से प्रसन्न करके परमेश्वर से और उससे हम कैसे अनुग्रह पा सकते हैं। The Word of God teaches us as to how we can humble ourselves. परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि कैसे हम नम्र बन सकें। The word humbling in Greek is a word called tapernomai. और जो नम्रता या दीनता जो शब्द है यूनानी भाषा में वो है टप्पर पलाई। It actually means to make self low. और उसका वास्तव अर्थ ही है कि अपने आप को नीचा करना। To lower yourself and lift up other people. अपने आप को नीचा करना और दूसरे लोगों को ऊंचा उठाना। In Philippians chapter 2 verse 3, it talks about the expression of humility. In humility, consider others better than yourselves. और फिलिपियों 2:3 में कहता है कि दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। And normally when you say that so and so has humbled himself, what we mean is earlier he was proud but now he's become humble. और हम कहते हैं जब कि भाई ये आदमी अब नम्र हो गया है तो इसका मतलब पहले घमंडी था पर अब ये जो है बहुत नम्र हो गया है। But that's not the meaning of humility. Humility is actually making yourself low. पर वास्तव जो अर्थ है दीनता का, नम्र होने का, वो ये है कि अपने आप को नीचा करना। It does not mean before a person becomes humble that he is proud before. और इसका मतलब ये नहीं है कि ये आदमी ने अपने आप को नम्र किया तो इसका मतलब ये पहले घमंडी था। For example, Philippians chapter 2 verse 8 says, Jesus humbled himself. और जैसे फिलिपियों 2:8 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया। Now, does it mean he was proud before? तो क्या इसका मतलब ये है कि वो पहले घमंडी थे? No, he shared the glory of creation with the Father. He left that glory in heaven, became man, lowered himself, lower than the angels. He became man. That was humbling. और वो प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर के साथ सृष्टि के समय थे और फिर उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया, मनुष्य के साथ रहा और इस अपने आप को नीचा किया, दीन हो गया। The creator of the whole world, yet he came to the world in a very simple way. वो पूरी सृष्टि का सृष्टिकर्ता थे पर अपने आप को नम्र किया और एक बिल्कुल साधारण तरीके से पृथ्वी पे आए। He came down to do the will of the Father. और पिता की इच्छा पूरा करने के लिए पृथ्वी पे आए। In the same way, an example in the Bible about not only the Lord Jesus Christ himself humbling himself, people like Moses and Paul were all humble people, and we learn from the Bible how we can humble ourselves. So I'm going to go through various points by which we can learn how to humble ourselves. और प्रभु यीशु मसीह नम्र थे और इसके साथ साथ जो मनुष्य के रूप में मूसा और पतरस और पौलुस थे, ये भी नम्र लोग थे और आज हम वचन से देखेंगे कैसे हम अपने आप को नम्र बना सकते हैं। The first is to remember the cross of the Lord Jesus Christ. सबसे पहली बात है हमें प्रभु यीशु मसीह की क्रूस को याद रखना है।
The message of the cross keeps us humble. क्रूस का जो संदेश है वो हमें नम्र बनाता है। Without the cross, we'll all be lost. बिना क्रूस के हम सब खो जाएंगे। And as Gentiles, today we are God's children only because of Christ dying on the cross and making our hearts perfect by His blood. और हम जो अन्य जाति हैं, हम जो सिद्ध हैं, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से और उसके लहू से हम सिद्ध होते हैं। When the Lord walked this earth, He came primarily for the Jews. जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पे आए तो वो खास करके यहूदी लोगों के लिए आए थे। His life was primarily for the Jews. Very rarely He ministered to Gentiles. और वो उनका पूरा जीवन जो खास कर जो था वो यहूदी लोगों के लिए था। बहुत कम समय पे उन्हें अन्य जातियों के बीच में काम किया। When a lady came to Him for her daughter to be healed of demon possession, the Lord did not minister initially. और जब वो स्त्री अपनी लड़की को लेके आई जिसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था, तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले उसको चंगाई नहीं दी। And she came to disciples, and the disciples tell Jesus, she's pestering us, daughter's demon possession, she wants to be healed. और चेलों ने कहा, प्रभु ये हमारे को तंग परेशान कर रही है, इसकी लड़की बीमार है और ये हम चाहती है कि इसकी बेटी चंगी हो जाए। And the Lord tells disciples, I've come only for the lost sheep of Israel. प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, मैं तो इजराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूँ। Then the lady comes to Jesus for healing, for her daughter to be healed of demon possession. और फिर वो स्त्री जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आके घुटने पे आती है और कहती है कि वो चाहती है मेरी बेटी जो है इस दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए। And Jesus tells her, I can't give the children's bread to the dogs. प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मैं बच्चों का भोजन लेके कुत्तों को नहीं दे सकता। Imagine how you will feel as a Gentile. You come to Jesus and He says, I can't give children's bread to the dogs. Children meaning the Jews, Israelites. और कैसा लगे कि प्रभु क्या है कि भाई मैं जो है बच्चों का भोजन लेके, जो बच्चे हैं वो यहूदी लोग हैं, उनका भोजन लेके कुत्तों को नहीं दे सकता, अन्य जातियों को नहीं दे सकता। The Lord doesn't want to put her down. He's only testing her heart to know whether she's humble to accept that even she can receive blessings from God. प्रभु उसको नीचा नहीं दिखाना चाह रहे, पर उसको परखना चाह रहे हैं कि कैसे वो एक नम्र होके कैसे इस आशीष को पा सकती है। The Lord says, even the dogs eat the crumbs that fall from the table. और वो स्त्री बोलती है कि जो कुत्ते हैं वो भी स्वामी की मेज से नीचे गिरे हुए चूर चार को खा लेते हैं, टुकड़ों को खाते हैं। The Lord is commending her for her faith. Great is her faith, he tells her. Great faith she had. प्रभु यीशु मसीह उसके विश्वास की तारीफ करते हैं, कहते हैं इसका विश्वास बहुत बड़ा है। And He healed that daughter of demon possession. और प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़की को चंगा किया, उस दुष्ट आत्मा से आजाद किया। Also, a few days before He was crucified, some Greeks came to see Jesus. और इससे पहले प्रभु यीशु मसीह पे क्रूस पे चढ़ाए गए कुछ हफ्ते पहले कुछ यूनानी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए। A few days before that, और कुछ दिन पहले they come to Philip. और फिलिप के पास आए। And then Philip goes to Andrew. और फिलिप अंद्रियास के पास जाता है। This is found in 12th chapter of John, verse 20 to 23. और यूहन्ना के 12वें अध्याय में 22 से 23 में आते हम इस बात को देखते हैं। And then Philip and Andrew both knew that normally Jesus would not minister to Gentiles. और वो फिलिप जानता था कि प्रभु यीशु मसीह जो है अन्य जाति लोगों के बीच में उनकी सेवकाई नहीं करते। They go to Jesus and say, some Greeks have come to see you. और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पास जाके कहा कि कुछ यूनानी लोग आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। And the Lord says, the hour has come for the Son of Man to be glorified. और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। Meaning that the time has come that all people will now receive the blessings of God, the grace of God, and salvation too. और मतलब था कि अब समय आ गया है कि सब मनुष्य जो है, सारी मनुष्य जाति उद्धार पाए और परमेश्वर की महिमा में शामिल हो सके। When He walked this earth, it was primarily for the Jews, for the Israelites. और जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पे थे, उनका मुख्य मकसद था यहूदियों के बीच में सेवकाई करना। Till He was crucified, we know that in the temple in Jerusalem, there'd be a holy place, then there's a curtain, there's a Jewish coat, Gentile coat, outside the lepers. और हम जानते हैं कि जो मंदिर था उसके अति पवित्र स्थान था, फिर पवित्र स्थान था, उसके बाद बाहर का फिर सबसे फिर बाहर का जहाँ पे वेदी का वो बलिदान देने वाली जगह थी, और सबसे आखिर में अन्य जाति लोग जो द्वार के बाहर रहते थे।
Beyond the curtain would be the most holy place, where once in a year the priest will enter, the high priest will enter the most holy place after sacrificing blood of animals and bulls. और अति पवित्र स्थान जो पर्दे के पीछे था, वहां पे जो याजक था साल में सिर्फ एक बार और ये लहू लेके बैल का और मेमने का लहू लेके ही प्रवेश करता था। When Christ was crucified, the curtain of temple tore into from top to bottom. जब यीशु मसीह क्रूस पे मारे गए तो जो पर्दा था मंदिर का वो ऊपर से नीचे तक पूरा फट गया। Which means now anybody can enter the most holy place. इसका अर्थ ये है कि अब कोई भी उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता है। By faith and the blood of Jesus, we all enter the most holy place. We become God's children today when we receive Christ. हम विश्वास के द्वारा से उस पवित्र स्थान में प्रभु यीशु मसीह के पास प्रवेश कर सकते हैं। हम उद्धार जो अब हम विश्वास के द्वारा उद्धार पाते हैं। His life on this earth was primarily focused on the Jews, but his death and thereafter the blessings came to all people who are willing to receive this gift of salvation and Christ into their hearts. और मृत्यु से पहले सिर्फ प्रभु यीशु मसीह यहूदी लोगों के लिए था, पर मृत्यु के बाद वो द्वार खुल गया कि सारे अन्य जाति लोग, सारे संसार के लोग जो है प्रभु यीशु परमेश्वर के पास आ सकते हैं। We're all Gentiles. Today we have received this grace only because of the sacrifice of Christ on the cross, because of the cross of Christ. और हम जो अन्य जाति लोग हैं, हम जो हमारा जो उद्धार हुआ है सिर्फ प्रभु जो क्रूस पे मारे गए उस पे विश्वास करने से प्रभु यीशु मसीह पे हम उद्धार पाते हैं। That's why we should never forget the cross. इसलिए हमारे को कभी भी क्रूस को नहीं भूलना चाहिए। It should be our boast. वो हमारे घमंड का एक कारण होना चाहिए। Now, when you're not humble, then what happens? We boast about so many other things. जब हम नम्र नहीं होते तो हम बहुत सारी चीजों पे घमंड करते हैं। We boast about our achievements, our wisdom, our strength, our what have we done in life. We boast about ourselves. हम अपने बुद्धि पे, अपनी चीजों पे, हमने अपने जीवन में क्या क्या चीजें पाली हैं, क्या क्या काम करे हैं, उस पर घमंड करते हैं। Once you taste Jesus, you can't boast about all those things. और जब हम एक बार प्रभु यीशु मसीह को चख लेते हैं तो हम फिर बाद में इन चीजों पे घमंड नहीं करते। In Galatians 6:14, Paul writes, "May I never boast except in the cross of my Lord Jesus Christ, through which the world is crucified to me, and I have been crucified to the world." गलतियां 4:14 में पौलुस लिखता है, पर ऐसा ना हो कि मैं किसी और बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। As a very faithful and staunch Pharisee, he could have boasted about his background, his achievements as a Pharisee. वो एक फरीसी था और वो अपनी इस बात पे घमंड कर सकता था कि मैं कितना एक पक्का फरीसी हूं और मेरी क्या-क्या कितना मुझे ज्ञान है, उस पर घमंड कर सकता था। The third chapter of Philippians, we read verses 5 and 6. We read in Hindi, 5 and 6, please. फिलिप्पियों 3 अध्याय 5वीं और 6वीं आयत पढ़ेंगे। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। Talk about the achievements. He's standing in society, Jewish society. वो अपनी जो उसकी उपलब्धियां हैं और यहूदी समाज में उसका क्या पद है उस पे घमंड कर सकता था, बता रहा उसके बारे में। Circumcised on the 8th day और कहता 8वें दिन मेरा खतना हुआ, of the people of Israel, इजराइल के वंश का हूँ, of the tribe of Benjamin, और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, a Hebrew of Hebrews, इब्रानियों का हिब्रू हूँ, we got a law of Pharisee, और व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो मैं फरीसी हूँ, we got zeal persecuting the church, और उत्साह के विषय में यदि कहो तो मैं कलीसिया के सताने वाला था, we got legalistic righteousness, faultless, और व्यवस्था और धार्मिकता के में यदि कहो तो मैं निर्दोष था। but he said, I consider all things rubbish compared to knowing Jesus. और वो कहता है ये सब बातों को मैं जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हें मैं अब मसीह के कारण हानि समझ लेता हूँ। As a Jew, he had every reason to boast about his standing in society, but it's all that nothing compared to knowing Christ and for the cross of the Lord Jesus Christ. वो एक फरीसी और यहूदियों ने कारण इन बातों पे घमंड कर सकता था, पर वो प्रभु यीशु मसीह क्रूस के और प्रभु यीशु मसीह के काम को जानने के बाद अब वो इन सब चीजों पे घमंड नहीं कर रहा। Today, as God's people, He blesses in so many ways apart from salvation. और हम प्रभु यीशु मसीह के जो लोग हैं, परमेश्वर हमारे को उद्धार के अलावा
बहुत सारी और आशीषें भी देते हैं। He gives us wisdom, He gives us strength, He gives everything we need, all because of His sacrifice on the cross for us. We even become the children of God. परमेश्वर में बुद्धि ज्ञान देते हैं सिर्फ इसलिए कि हमने प्रभु के क्रूस उसके पुत्र क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पे अपनी जान दी उसे विश्वास करते हैं, उसके द्वारा से हमें सब चीजें मिलती हैं। Have you ever wondered why in the New Testament the only ritual in the ordained in the New Testament is actually communion, partaking of the communion. और एक ही व्यवस्था, एक ही जो रीति रिवाज की बात करें अगर नए नियम में लिखी है तो वो है मेज में भाग लेने की जो रीति है। What's the meaning of ritual? Ritual means repetitive act. एक रीति रिवाज मतलब जो एक बात बार 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 करी जाए। That's the only ritual in the New Testament, no other ritual. इस रीति रिवाज को छोड़ के नए नियम में कोई रीति रिवाज की बात नहीं लिखी है। Baptism is a one-time act of obedience after we accept Christ and become believers. और बपतिस्मा लेना तो एक बार एक विश्वास का एक चिन्ह है। जब हम उद्धार पा जाते हैं तो हम फिर बपतिस्मा लेते हैं, वो एक बार होता है। But communion is as often as we do it, we proclaim His death till He comes again. और जब मेरे भाग लेते हैं तो हम बार बार उसको करते हैं क्योंकि हम इस बात की गवाही देते हैं, इस बात का प्रचार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने प्राण दिए, जान दी। We remember His death till He comes again. हम उसकी मृत्यु को स्मरण करते हैं जब तक वो वापस नहीं आ जाते। Remembering His death means remembering the cross, the crucifixion of Christ. और उसको याद करना मतलब जो प्रभु ने क्रूस पे अपने प्राण दिए, जो उस बलिदान दिया, उसको हम स्मरण करते हैं। We remember who we are today is only because of the cross. We'll boast of the cross. We'll never boast about any of our achievements and what we've done even in Christian life. और हम क्रूस को चखने के बाद सिर्फ क्रूस पे जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे किया उस बात पे घमंड करते हैं, और उसके अलावा किसी भी बात पे जो हमने अपने जीवन में करी है हम घमंड नहीं करते। Our ultimate example of humility is the Lord Jesus Christ Himself. और इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण जो हमारे लिए है वो प्रभु यीशु मसीह खुद है, जो नम्रता का उदाहरण है। He's the creator of the whole world. पूरी सृष्टि के सृष्टिकर्ता थे, Yet He entered the world. फिर भी वो संसार में मनुष्य रूप करके आए। People didn't recognize Him. किसी ने उसको पहचाना भी नहीं। They persecuted Him. उसको सताया, They flogged Him. They mocked Him. उसको कोड़ों से मारा, उसका ठट्टा उड़ाया। And ultimately He went up the cross just to fulfill the purpose of God the Father. और अंत में वो क्रूस पे चढ़ गए सिर्फ इसलिए कि पिता की इच्छा को पूरा कर सके। So our boast must be the cross. इसलिए हमें जो घमंड करना है वो सिर्फ क्रूस पे करना है। The first step to humility is remembering Christ's humility Himself, His humility, and remembering the cross because of which we are who we are today, God's children. और जब नम्रता के लिए हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे को इसी बात पे हमें याद रखना है, प्रभु यीशु मसीह के खुद नम्रता के ऊपर को हमें याद रखना है, और दूसरा उसने जो क्रूस पे हमारे लिए जो काम किया, अपने जान दी, उसको हमें स्मरण The करना है। second way by which we can humble ourselves is remembering who we were when we were called, remembering our beginnings. और दूसरी बात जो हम नम्रता के लिए हम कर सकते हैं वो ये है कि हम याद रखें कि इससे पहले कि हम प्रभु ने हमें बुलाए हम क्या थे। After we turn to Jesus, He's blessed us in so many ways. Every way He's blessed us. And sometimes we look at all the blessings and we think we earned the blessings. और हम जब प्रभु के पास आए तो हम बहुत सारी आशीषें हमें मिली, और कई बार हम सोचने लगते हैं कि ये सारी आशीषें जो है ना मैंने कमाई है। Blessings today we receive because of the grace of God. तो ये आशीषें जो हमें आज मिली हैं ये सब सिर्फ प्रभु के अनुग्रह के द्वारा से मिली हैं। In John 1:16 it's written, from the fullness of His grace we receive blessing after blessing. और यूहन्ना 1:16 में लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। As we grow in the knowledge of God and God blesses us in so many ways, we tend to forget how we all began. और जब हम प्रभु में उद्धार पा जाते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम जो आशीषों को पाने के बाद हम भूल जाते हैं कि हमने शुरुआत कैसे करी थी। Even in the Old Testament time, read about how the Israelites in Hosea chapter 13 verse 6, God speaks about them. और होशाया 13वां अध्याय उसकी 6ठी आयत में हम देखते हैं प्रभु परमेश्वर उनके बारे में बताता है, इस्राएलियों के बारे में। When I fed them, they were satisfied. When they were satisfied, they became proud. Then they forgot me. परंतु जब इस्राएल चराए जाते थे और वे तृप्त हो गए, तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया, इस कारण वे मुझको भूल गए।
And sometimes, as we grow in knowledge and blessed by God, we forget how it all began. Only by the grace of God, He brought us to where we are today. और हम जब अपने जीवन में आशीष पाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमने शुरुआत कैसे की। ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है, जो आज हमें जो आशीष हमें मिली है उसके अनुग्रह से ही मिली है। The Apostle Paul never forgot that he was once a violent man, a persecuted blasphemer. पौलुस ने कभी भी अपने जीवन में इस बात को नहीं भूला कि कैसे वो एक सताने वाला, एक बड़ा उपद्रव करने वाला व्यक्ति था। He didn't remember his past in a negative way, but in a positive way. That even though I was like that, I was shown mercy and grace. और उसको नकारात्मक तरीके से नहीं स्मरण करता, वो उसको सकारात्मक रीति से यह स्मरण करता है कि मैंने कैसे शुरुआत की थी, मैं कैसा था और परमेश्वर ने अनुग्रह से मुझे क्या बना दिया। He never forgot his beginnings. वो अपनी शुरुआत को कभी नहीं भूला। And wrote to the Corinthians in 1 Corinthians chapter 1 from verse 26. और पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 26वें आयत से आगे वो लिखते हैं, Think of what you are when you are called. हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो Not many were wise by human standards. कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, Not many were influential. ना बहुत सामर्थी, Not many were of noble birth. ना बहुत कुलीन बुलाए गए, But God chose the foolish thing to shame the wise. He chose the weak thing to shame the strong. परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। He chose the lowly things and despised things, nullify things that no one can boast before him. और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो कुछ भी नहीं है उनको चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। Those people, when they became believers, they were very simple people, lowly, unwise, very weak. And then he said, remember what you were when you were called. तो हम जब बुलाए गए तो हम बहुत नम्र नीचे थे और कुछ भी नहीं थे, पर हमें इस बात को स्मरण रखना है कि हम जब परमेश्वर ने बुलाया हम क्या थे। And he gave you his wisdom, he gave you his strength, he blessed you so much. So never forget your beginnings. उसने अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी सामर्थ्य में दी, इसलिए हमें अपनी शुरुआत को कभी नहीं भूलना है। Remembering our beginnings will keep us humble. हम अपनी शुरुआत को हम क्या थे उसको याद रखते हैं तो वो हमें नम्र बनाए रखेगा। Grace by definition means receiving something wonderful which you don't deserve. और अनुग्रह का मतलब है कि एक ऐसी चीज को प्राप्त कर लेना जिसके हम लायक नहीं है, बिल्कुल भी उसके हकदार भी नहीं है। Blessings of God are not earned, they are received. और ये आशीषें जो हैं ये हमने कमाई नहीं है, ये हमारे को दान में मिली है। And therefore, remembering our beginnings will keep us humble. इसलिए अपनी शुरुआत को अगर हम स्मरण रखेंगे तो हम नम्र बने रहेंगे। I remember my past before I became believer. I used to go to a place of worship and in fact bow down before snake pits and worship snakes. और इससे पहले कि भाई का उद्धार हुआ था, भाई से याद करते हैं कि कैसे वो सांपों की मूर्तियों के सामने जाके सांप की आराधना करते थे। There used to be in a particular place of worship, there used to be a snake pit. The snake never came out. My mom told me, if you give milk to the snake, then you'll be blessed. और एक सांप की मांदी भी थी, छेद था जिसमें सांप रहता था। वो कभी सांप देखा तो नहीं, पर माँ कहती थी कि अगर तू सांप को दूध पिलाएगा तो तुझे आशीष मिलेगी। And I take a small katori of milk and try to go near that place where the snake would come out. And it never came out. I never gave milk, it never came out. But I am blessed today because of the grace of the Lord Jesus. और भाई कटोरी लेके दूध लेके जाते थे, वो सांप कभी बाहर नहीं आया, ना उस भाई ने कभी उसको दूध पिलाया, पर परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने आज भाई को सारी आशीषें दी हैं। And so I never forget that, because if I was so intelligent and so great a person, why would I worship a snake? और इसलिए भाई कभी इस बात को नहीं बोलते कि अगर इतने समझदार, इतनी बुद्धि वाले होते तो वो सांप की आराधना क्यों करते। It was spiritual blindness. ये एक आत्मिक अंधापन था। The Lord opened my eyes. परमेश्वर ने आंखें खोल दी। The Lord opened my mind. परमेश्वर ने भाई की बुद्धि को, समझ को खोल दिया। So all glory must go to the Lord. इसलिए सारी महिमा जो है परमेश्वर को ही मिलनी चाहिए। Today, as people come and say very nice things about me, about my ministry, I go back to a time when I was doing all these things and not knowing the Lord, and how from that situation He's brought me this far. और भाई कुछ लोग जब भाई की बोलते हैं, भाई आपकी सेवकाई बहुत अच्छी है, आपका संदेश बहुत अच्छा दिया, तो भाई ये याद करते हैं कि मैं क्या था, कैसे मैंने शुरुआत की थी, और परमेश्वर ही का अनुग्रह है कि वो मुझे यहाँ तक लेके आया। The Apostle Paul wrote about his past to Titus, again, and not in a negative way, but in a positive way. और पौलुस जो है
तीतुस को लिखते हुए बोलता है, वो अपने पुराने जीवन के बारे में नकारात्मक रीति से नहीं पर सकारात्मक रीति से उसको लिखता है। Let's read Titus chapter 3, verses 3 to 8. In Hindi, we'll read, but to save time. Titus 3, अध्याय 3 to 7. हाँ, तीतुस 3:3 से 8। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और रंग रंग की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तव में थे और बैर भाव और ढा करने में जीवन निर्वाह करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसकी प्रीति प्रकट हुई तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धार्मिकता के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिससे उसने हमें उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। मैं यह बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर की प्रतीति की है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्य के लाभ की हैं। So he's talking about his past. At one time we are foolish, disobedient, deceived, enslaved by all kinds of passionate desires, living in malice and envy, being hated and hating one another. और इसलिए वो पुराने अपने समय को याद कर रहा है कि वो कैसे वो उद्धार पाने से पहले अधर्मी था और परमेश्वर की आज्ञा ना मानने वाला था, पर परमेश्वर ने कैसे उस पर अनुग्रह किया और उसका उद्धार किया। He said, "We saved us by not by the righteous thing we've done, but because of mercy. Mercy and grace of God is what he was saved by, and he's also thanking God for redeeming him from the past life." वो कहता है ये जो है मेरे धर्म के कामों के कारण से नहीं हुआ, पर परमेश्वर की दया के अनुसार हुआ, जो उस पे पवित्र आत्मा के जन्म के द्वारा से नए बनाए जाने के द्वारा हुआ। The third way by which you can humble ourselves is by remembering who we are today is by the grace of God. और हमें तीसरी बात जो ये नम्र बनाने के लिए हमें याद रखनी है कि हम आज याद रखें कि आज मैं जो कुछ हूँ ये परमेश्वर के अनुग्रह के कारण से है। There's nothing that we earned, nothing we worked for, we only received. हमने जो भी हमने हमारे पास है, जो हम जहाँ आज हैं, इसके लिए हमने कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी हमने इसके लिए परिश्रम नहीं किया, ये सिर्फ हमें अनुग्रह से दान में मिला है। In 1 Corinthians 15:10, Paul writes, "By the grace of God, I am what I am." And grace was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God working within me. पहला कुरिन्थियों 15:10 में कहता, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब में से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। So he's talking about his present situation. What I am today is by the grace of God. वो अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में कह रहा है कि जो भी मैं हूँ वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। He also said, "But I worked hard more than anybody else. I worked hard." और वो कह रहा है कि मैंने बाकी सबसे ज्यादा परिश्रम किया, Yet not I, but the grace of God working within me. तो भी ये मेरी ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था उसके कारण से हुआ। What it means is God gave me grace to be able to work hard to receive more grace from God. और वो कहने का मतलब ये है कि उसने अनुग्रह परमेश्वर से पाया ताकि और परिश्रम करे, ताकि और अनुग्रह उसको मिल सके। For example, as we live by the word of God and live by faith, we grow in the Lord. जैसे हम परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलते हैं परमेश्वर में, और हम बढ़ते चले जाते हैं परमेश्वर में। Faith comes from hearing God's word. हमें विश्वास जो है परमेश्वर का वचन सुनने से हमें मिलता है। But to know God's word, we have to work hard. और परमेश्वर के वचन को जानने के लिए हमें और परिश्रम करना है। Spend time with scripture, spend time with God's people, learn from the Lord, and invest our time in fellowship with the Holy Spirit. परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ,
और परमेश्वर के वचनों में हमारे को समय बिताना है, ताकि हम उससे परमेश्वर से और अनुग्रह, उसके और ज्ञान में बढ़े। There's a point of time when people are following Jesus because they have been fed bread and fish. एक समय था जब लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे थे, क्योंकि उन्हें रोटी और मछली खाने को मिल रही थी। More than 5,000 men, plus women and children and elders were given from 5 loaves of bread and 2 fish, they were given enough food. 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 आदमी, और बच्चे बच्चे अलग, और बूढ़े लोग, बच्चे सब, औरतें वो छोड़ के सिर्फ आदमी आदमी 5,000 लोगों को इतने 5 रोटी और 2 मछली से खिला दिया। And they are all following him because of bread and fish. और सब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे इस रोटी और मछली के कारण से। The Lord tells them in John 6:27, और प्रभु यीशु मसीह उनको बोलता है यूहन्ना 6 उसकी 27वीं आयत में, do not work for food that spoils, but for food that endures to everlasting life. नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। They're working so hard and going behind Jesus everywhere to get bread and fish. वो इतना परिश्रम कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे हैं, ताकि उनको रोटी के लिए रोटी और मछली मिल जाए। He said, don't work for food that spoils. This food will spoil because it won't last forever. But work food endures to eternal life. That food is the word of God. और परमेश्वर कह रहे हैं कि ये नाशवान भोजन है, इसके लिए परिश्रम मत करो, पर अनंत जीवन तक जो ठहरता है, उस भोजन के अनंत काल तक जो रहता है, वो जो उस वचन के लिए, उस भोजन की खोज में रहो। It's by the grace of God today we are able to understand the Bible, to let it go deep into our hearts and minds. But there's hard work. He'll wake us up morning by morning, listen to Him and spend time with Him. ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम परमेश्वर अपने वचन से हमसे बात करता है, पर हमारे को परिश्रम करना है, रोज उसके साथ, और सुबह बैठना है और समय बिताना है उसके साथ, वचन में समय बिताना है, ताकि परमेश्वर की आवाज को हम सुन सके, समझ सके। Even the strength to work hard is by the grace of God. और ये परिश्रम करने की जो सामर्थ्य है, ये भी परमेश्वर के अनुग्रह से ही मिलती है। So we show our love for God by spending time with Him and investing in things of God. इसलिए हमारे को परमेश्वर के वचन में समय बिताना है, और परमेश्वर की जो चीजें हैं, परमेश्वर की व्यवस्था, बातें जो हैं, उसमें अपने समय को हमें लगाना है, काम में लगाना है। Knowing the Lord and knowing His Word, knowing God through the Word is by revelation of God. परमेश्वर को जानना उसके वचन के द्वारा से, ये सिर्फ परमेश्वर के प्रकाश से ही हमें मिलता है। But we have received the revelation. और हमें वो दर्शन हमारे को मिलना चाहिए। We have to wait upon God to for us to receive the revelation. और हमें परमेश्वर के ऊपर इंतजार करना है, बैठे रहना है उसके साथ, ताकि वो अपने दर्शन हमें दे। It's hard work, but enjoyable work. ये परिश्रम, मेहनत का काम तो जरूर है, पर ये बड़ा आनंद का काम है। In the book of Isaiah, chapter 50, verse 4, Isaiah writes, the sovereign Lord has given instructed tongue to know the word that sustains the weary. He wakens me morning by morning, wakens my ear to listen like one being taught. और यशायाह 50 उसकी 4 आयत में लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है, कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरे कान खोलता, कि मैं शिष्य के समान सुनूं। So he wakes up morning by morning. It's hard work. Early morning, getting up and spending time with God. For example, you have the previous night, you have a busy day. It's hard work, but it's enjoyable work. भोर को नित उठ वो जगाता है, पर ये एक कठिन काम है, क्योंकि अगर आपने रात में देर तक कुछ काम करते रहे और सुबह पर फिर उठना, तो ये मेहनत का काम है, पर इसमें बड़ा आनंद का काम है। We should never forget that what we are today, who He's made us to be today, is only by His mercy and His grace. तो हमें ये चीज को कभी नहीं भूलना है, हरदम याद रखना है कि जो कुछ मैं आज हूँ, ये परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह से है। And we don't earn blessings of God. और हम परमेश्वर की जो आशीषें हैं, उनको हम कमाते नहीं है। It's very easy to forget based on what people tell about us, a good thing they tell about us. It's easy to forget that it's all the grace of God by which we stand today and we have a ministry. The ministry is by the mercy of God. और ये बहुत मुमकिन है कि जब लोग हमारी तारीफ करने लगते हैं, तो हम इस बात को भूल जाएं कि हम क्या हैं, और हमारी जो सेवकाई है, वो भी जो कुछ भी है, वो सब परमेश्वर के अनुग्रह से, उसके दान के अनुग्रह से हमें मिला हुआ है। Nobody qualifies himself to serve God. कोई भी अपने आप को इतना उत्तीर्ण नहीं कर सकता कि वो परमेश्वर की सेवा करे। The Lord qualifies us. और
परमेश्वर ही है जो हमें उत्तीर्ण करते हैं। The Apostle Paul spoke very clearly about how his ministry is by the mercy of God and by the grace of God. तो पौलुस इसलिए इस बात को स्वीकार करता बोलता है कि मेरी सेवकाई जो है परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह के द्वारा से है। In 2 Corinthians 4 chapter verse 1, he writes, to the Lord's mercy we have the mystery, we don't lose heart. इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 4:1 में वो कहता है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते। Through the Lord's mercy we have the mystery. ये परमेश्वर की दया है जिसके कारण से हमें सेवा मिली है। Also, in Ephesians chapter 3 verse 8, he writes about how, although I am less and least of all God's people, this grace was given to me to preach to Gentiles the unsearchable riches of Christ. इसलिए इफिसियों 3:8 में कहता है, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। And Paul very clearly says, I am less and the least of all God's people. इसलिए पौलुस बड़े हियाव से बोलता है कि मैं परमेश्वर के लोगों में छोटे से भी छोटा हूँ। In 1 Corinthians 15:9, he says, I'm least of the apostles, don't deserve to be called an apostle. पहला कुरिन्थियों 15:9 में वो कहता है, क्योंकि मैं पवित्र प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन पवित्र प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को जिताया था। To Timothy he wrote that he is the worst of sinners, I am the worst of sinners. इसलिए वो तिमोथी को कहता है कि मैं सब पापी हैं उनमें छोटे से भी छोटा हूँ। So he knew fully well that what he was that day when he wrote the letter was by the grace of God. इसलिए वो कहता है कि जो उसने उस दिन वो पत्र लिखा वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से ही उसने वो लिखा। So first point was remembering the cross. पहला पॉइंट जो हमने आज सीखा बात वो ये है कि हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को स्मरण रखना है। Number 2, remembering your beginnings. दूसरी बात हमें जो स्मरण रखनी है वो अपनी शुरुआत को हमें याद रखना है And giving glory to God for that. और परमेश्वर को उस बातों के लिए महिमा देना है उस बात को। From that situation, he brought us out. क्योंकि परमेश्वर ने उस दिशा में से हमें बाहर निकाला है। And number 3, remembering what you are today is also by the grace of God and the mercy of God. और तीसरी बात जो है हमें याद रखना है कि जो भी मैं आज हूँ वो परमेश्वर के अनुग्रह और दया के कारण से है जो उसने मुझ पे करी। I had to cover 4 more points. इसके बाद 4 और पॉइंट है जिसको हम आगे 47 points. And once you go through all that, we will learn how to humble ourselves and thereby constantly receive more and more grace from God. इन सब 7 पॉइंटों को जो हम सीख लेंगे तो हम समझ जाएंगे, सीख लेंगे कैसे हम परमेश्वर के सामने नम्र होके और भी ज्यादा उसके अनुग्रह में बढ़ते जा सकते हैं। We'll ever be thankful to God will be when we realize it's all His mercy and grace and privilege for us to be servants of God. और हम परमेश्वर को धन्यवाद ही होंगे कि जो कुछ ये सब कुछ जो आज मैं हूँ वो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण से और उसकी सेवा जो है और नम्रता से कर सकता हूँ। God bless you all. परमेश्वर हम सबको आशीष दे।